السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ BC طبقے کو انصاف ملنے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ مودی نے حیدرآباد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ BJP اور RSS جھوٹ بولتے ہیں۔ LB اسٹیڈیم کے جلسے عام سے کھرگے کا خطاب۔ کانگریس حکومت آئندہ 10 سال تک اقتدار میں رہے گی۔ حکومت کی کارکردگی پر کھلے مباحث کے لیے وزیر اعلیٰ کا چیلنج۔ BB کے علم کی سواری کے لیے کرناٹک سے ہاتھی کا حصول۔ اتوار کے دن دوپہر علم کی برآمدگی، انتظامات کی تکمیل۔ موبائل فون جیب میں پھٹ پڑا، نوجوان زخمی، فون گرم ہونے سے حادثہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کے صدر ملکارجن کھرگے نے کہا ہے کہ BC طبقے کو انصاف ملنے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ لال بہادر اسٹیڈیم میں سماجی انصاف جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کھرگے نے کہا کہ کارکنوں کی محنت سے ہی تلنگانہ میں کانگریس اقتدار میں آئی ہے۔ کارکن کانگریس پارٹی کی آتما ہیں۔ حیدرآباد میں قومی سرکاری ادارے ہیں، یہ ادارے کانگریس پارٹی نے قائم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی نے عوام سے جھوٹ بولا، 15 لاکھ کروڑ روپے کا وعدہ کیا لیکن وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ مودی اور امت شاہ عوام سے جھوٹ بول کر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ ملک کے لیے مثالی ریاست بننے والی ہے۔ ہم نے جو کہا اس کو کر دکھایا۔ تلنگانہ میں طبقاتی سروے کر کے ملک میں مثالی ریاست بن چکی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ پچھڑے طبقات کو تحفظات دے کر رہیں گے. BRS حکومت میں کتنی بدعنوانی تھی یہ سب کو معلوم ہے. کانگریس حکومت آنے کے بعد بدعنوانی کا خاتمہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے لیے مودی نے کچھ نہیں کیا. کھرگے نے کہا کہ پہلگام کا واقعہ ہونے پر ہم نے مرکزی حکومت کی تائید کی تھی، لیکن مرکزی حکومت نے کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا. کھرگے نے کہا کہ معافی مانگنا BJP اور RSS والوں کو اچھی طرح معلوم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مودی کی طرح اندرا گاندھی خوفزدہ نہیں تھی. کھرگے نے کہا ہے کہ جے باپو، جے بھیم، جے سمویدھان پروگرام کو گھر گھر لے کر جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ دستور سے لے کے سیکولرزم لفظ کو نکالنے کی BJP کوشش کر رہی ہے. BJP کو سیکولرزم لفظ سے تکلیف ہے، جبکہ BJP کے پارٹی دستور میں سیکولر و سوشلسٹ کا عہد کیا گیا ہے. کام کیا اور آج کانگریس کی گورنمنٹ تلنگانہ میں آئی ہے. اس کا سب شریش، سب کریڈٹ ہمارے پورے کانگریس کے کارکرتاؤں کو جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کا سب شکر گزار ہوں. کسی ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ جن کے پاس خوب پیسہ تھا اور ہر طریقے سے وہ مضبوط تھے، ان کو ہلا کر اگر کانگریس کے لوگ ہمارے ریونت ریڈی جی اور ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر، ہمارے منسٹرز، ہمارے کانگریس ادھیکش، انہوں نے جو ہمارے پارٹی کو مضبوط دلائی ہے، یہ بہت بڑی جیت کانگریس کی ہو گئی ہے. لوگ تو یہ کہتے تھے بھائی KCR کو چھوڑ کے کوئی پارٹی یہاں نہیں آئے گی، اور یہ بھی چند لوگ کہتے تھے کہ BJP سینٹر میں ہے، اسی لیے یہاں پر بھی مضبوطی کے ساتھ وہ لڑ کے کانگریس پارٹی کو تو آنے نہیں دے گی اور BJP آگے بڑھے گی. لیکن آپ لوگوں نے دکھایا، سب کو ہرا کر کانگریس پارٹی کو جتایا. یہ بہت بڑی بات ہے. آرٹیکل 2 جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لکھا ہے، ارے اگر آپ کو سوشلزم سیکولرزم سے نفرت ہے تو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کیوں لکھے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، تم ہو، تمہارا BJP ہو، تمہارا مودی جی ہو، شاہ ہو، کوئی نہیں نکال سکتے. یہ میرا چیلنج ہے، اگر نکالے تو. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ KCR کے محل کو توڑ کر حکومت چلا رہے ہیں. LB اسٹیڈیم کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بعض کا خیال تھا کہ کانگریس قائدین مل کر نہیں رہ سکتے، یہ چند دن کی بہار ہے. ایسا کہنے والوں کو پارٹی کے قائدین نے منہ توڑ جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سب رکاوٹوں کے باوجود ان کو دور کرتے ہوئے حکومت چلا رہے ہیں. راہل گاندھی نے وعدہ کیا تھا کہ طبقاتی سروے کرائیں گے، جس کو 1 سال کے اندر ہی طبقاتی سروے اور SC زمرہ بندی کر کے بتایا گیا ہے اور ملک کے لیے مثال بن گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کی کارکردگی پر کوئی بھی مباحث کے لیے آگے آ سکتے ہیں. KCR ہوں، مودی ہوں یا پھر کشن ریڈی، کوئی بھی مباحث کے لیے آگے آ سکتے ہیں. ان سب کو اگر حساب چاہیے تو وہ بھی دیں گے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 10 سال تک کانگریس پارٹی اقتدار میں ہوگی. گاندھی بھون میں پارٹی توسیع اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں دیگر ریاستوں کے مقابلے تلنگانہ ریاست مثالی بنے گی. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت پر طبقاتی سروے کروانے کے لیے دباؤ ڈالا ہے. انہوں نے کہا کہ جب وہ PCC صدر تھے اس وقت 45 لاکھ افراد کی رکنیت سازی کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اسمبلی پارلیمنٹ نشستوں میں اضافہ ہوگا. 89 حد بندی کے بعد
ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात और जिमली इंतख़ाबात असर अंदाज होंगे। इन्होंने कहा है कि नई क़यादत के लिए 2029 का इंतख़ाबी प्लेटफॉर्म होगा। पार्टी के बहबूदी प्रोग्राम को आवाम में लेकर जाएं। हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मनसूबाबंदी के साथ मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। इन्होंने कहा है कि पार्टी का ओहदा मिलने से सबको इज्जत मिलेगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पुराने और नए फ़र्क के बगैर तमाम कायदीन मिलकर काम करें। गांधी भवन में PAC इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि जल्द ही तमाम कमेटियों का तकर्रुर का अमल मुकम्मल करें। कांग्रेस पार्टी तंजीम जदीद की तकमील करे। इजलास में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब और मजालिस मुकामी इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा BC तबक़ाती सर्वे और SC ज़ुमराबंदी पर हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं इस पर गौर ख़ौस किया गया। इजलास में जय भीम जय संविधान प्रोग्राम की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खिताब करते हुए कहा है कि पार्टी के ताल्लुक़ से किसी भी बात पर बाहर तनक़ीद ना करें, अपोजिशन पार्टी को कोई मौका फराहम ना करें। इन्होंने कहा है कि किसी भी मामले में पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से रुजू करें। इस मौके पर वज़ीर आला ने खिताब करते हुए फिर एक बार विज़रा पर नाराज़गी ज़ाहिर की। इन्होंने कहा है कि विज़रा लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद के दौरे पर हैं। इन्होंने जुमा को लकड़ी का पुल पर नस्ब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आन जहानी के रोशैया के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के कई अहम इजलास में शिरकत की। पार्टी ने इस दिन को तंजीमी सरगर्मियों के लिहाज से एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। वाज़ेह है कि खड़गे जुमेरात की शाम हैदराबाद पहुंचे थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया था। रियासती असम्बली तेलंगाना में भी रोशैया की तस्वीर पर स्पीकर G प्रसाद कुमार के अलावा असम्बली उमूर इंचार्ज श्रीधर बाबू और दीगर ने फूल चढ़ाकर खिरात पेश किया। BRS सदर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को खराबी सेहत के सबब सुमाजीगुड़ा में वाक़ शुदा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। साबिक रियासती वज़ीर और BRS के कारगुजार सदर KTR का कहना है कि उनके वालिद KCR की तबीयत मुस्तहकम है। उनका कहना था कि KCR का अस्पताल दाखिला मामूल की जांच का हिस्सा है। इस बीच रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने KCR की जल्द सेहतियाबी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जानिब से जारी करदा ताज़ा मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि KCR जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करने के बाद शाम के वक्त हॉस्पिटल से रुजू हुए थे। इब्तिदाई मुआयनों में उनके खून में शुगर की सतह ज़्यादा और सोडियम की मकदार कम पाई गई। ताहम उनकी मजमूई सेहत फ़िलहाल मुस्तहकम है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने KCR की सेहत के हवाले से यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और दीगर ज़िम्मेदारान से बातचीत की है। इन्होंने साबिक वज़ीर आला को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत दी और उनकी जल्द सेहतियाबी और मुकम्मल शिफायाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। KCR ने पार्टी कायदीन के साथ बातचीत भी की। तेलंगाना BJP के सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि समाजी इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जलसा मुनक्किद किया है। इन्होंने ट्विटर पर तनकीद करते हुए कहा है कि गारंटी वादों के नाम पर जल्दबाजी से काम लिया गया, अमल के मामले में सिफर है, BC तबके के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इन्होंने कहा है कि SC/ST को जय भीम के नाम पर हथकड़ियाँ डालकर ड्रामाबाजी की जा रही है। इमरजेंसी के ज़रिए जमहूरियत का खून किया गया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारों के ज़रिए इंसाफ और दस्तूर के उसूलों का कांग्रेस पार्टी ने खून किया है। 10 मुहर्रम मुताबिक 6 जुलाई बरोज़ इतवार यौम आशूरा के मौके पर बीबी के अलम की सवारी के लिए कर्नाटक के
टिमकूर से हाथी को लाया जा रहा है। अलम के हाथी के लिए सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी के बाद सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी हाथी के हुसूल के लिए 3 मुहर्रम की शब कर्नाटक के लिए रवाना हुए थे। सदर मजलिस ने उन्हें ताकीद की कि वो हाथी को साथ लेकर आएं। तेलंगाना के महकमे जंगलात की जानिब से दिए गए मशवरों पर इन्होंने कर्नाटक के मुख्तलिफ मठों में राब्ता करके बाला आखिर जुमा को टिमकूर के एक मठ से हाथी को लाने में कामयाबी हासिल की। हाथी को एक ट्रक के जरिए रवाना कर दिया गया है जो हफ्ते की दोपहर तक हैदराबाद पहुंच जाएगा। हुकूमत तेलंगाना की एमा पर हुकूमत कर्नाटक ने हाथी के हुसूल के लिए कागजी मंजूरियों की आजिलाना तकमील कराई है। इस मरतबा हाथी के हुसूल में पेश आई दुश्वारियों को इन्होंने बयान किया। HEH दी निज़ाम्स के उमूर मजहबी शोबे के ताउन कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी का हुकूमत से मुसलसल राबता, इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, कांग्रेस के कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, फ़हीम कुरैशी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के ताउन वो इनकी मुसलसल कोशिशों का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने कहा है कि सदर मजलिस 3 मुहर्रम से अब तक उनके साथ राब्ते में रहकर हाथी के हुसूल में रुकावटों को दूर करते रहे। बीबी के अलावा के मुतवल्ली मोहम्मद एजाज के मुताबिक अलम की सवारी इतवार 10 मुहर्रम को ठीक 1 बजे रवाना होगी, जो शेख फैज़ की कमान, अंदरून याकुतपुरा, एतबार चौक, कोटला अलीजा चौक, मैदान खान से होते हुए चांद मीनार पहुँचेगा। चांद मीनार से बरह गुलजार हाउस, पंजे शाह, मीरा आलम मंडी, पुरानी हवेली, दारुशिफा से होते हुए मस्जिद इलाही चादर घाट पर इख्तिताम को पहुँचेगा। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र नामपल्ली में वाक़ पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन के अतराफ मुख्तलिफ पोस्टर चिप्सा नजर आए। इन पोस्टर्स पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। गांधी भवन पर चिस्पा पोस्टर्स में पार्टी लीडरान का इस्तकबालिया नारे दर्ज थे, जबकि गांधी भवन के मुख्तलिफ सिमत वाक़ बस स्टॉप पर काबिल एतराज़ नारे भी देखे गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे हैदराबाद और गांधी भवन में मुनक्किद इजलास में शिरकत के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। गांधी भवन के रूबरू भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी गांधी भवन में मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी के रोशैया को खिरात पेश किया है। मानसून के पेश नज़र आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इस पेश क़यासी के साथ बास अजला के लिए एहतियाती इंतबाह जारी किया है। महकमे के मुताबिक आसिफाबाद, मिंचरियाल और भोपालपल्ली अजला में शदीद बारिश मुतवक्के है, जबकि मुत्तहदा आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, रंगारेड्डी, हैदराबाद, निज़ामाबाद, भोपालपल्ली, मुलुगू और संगारेड्डी अजला में गरज चमक के साथ हल्की ता दरमियानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने अपने हल्के के आशुरखानों का दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने आशुरखाना अहले बैत आसिफ नगर, आशुरखाना हज़रत अब्बास हिमायूं नगर, आशुरखाना हुसैनी आज़ा हिमायूं नगर का दौरा किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC और महकमे आबरसानी के अहदेदारों के हमरा टोली चौकी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने टोली चौकी, अकबरपुरा, अकबरबाग, गोलकुंडा, मोती दरवाज़ा, रेती गली के अतराफ व अकनाफ के इलाकों का अहाता किया, जहाँ नई CC रोड और सालार मिल्लत बोरवेल के तरक्याती काम किए जा रहे हैं।
इस मौके पर मजलिस के अराकीन बल्दिया के अलावा मिर्जा शब्बीर अली बेग और मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। नौजवानों को हुनर से इस्तेवार करने महबूब नगर में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज ट्रेनिंग सेंटर टास्क का रुकन असम्बली एन श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। ये सेंटर हैदराबाद में कायम की गई यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी से मरबूत है। म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स में कायम किए गए इस सेंटर के ज़रिए इंटरमीडिएट से पोस्ट ग्रेजुएशन किए नौजवानों को मुख्तलिफ फ़नी कोर्सेज़ की एडवांस कोचिंग फराहम की जाएगी, जिसके ज़रिए वो अपने करियर को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। पहले बैच में 50 तलबा को दाखिला दिया गया है। इस सेंटर की मुस्तकिल इमारत के लिए जगह की निशानदही की गई है। रुकन असम्बली ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा है कि ज़िले को तालीमी मरकज़ की हैसियत से तरक्की दी जा रही है। पालमूर यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर पालमूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर GN श्रीनिवास, टास्क के अहदेदार, अवामी व सियासी कायदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मेडीपल्ली वाक़े में शदीद ज़ख्मी होने वाले ड्राइवर की जानिब से मुकामी पुलिस में एक केस दर्ज करवाया है। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर मुस्तफ़ा अपनी गाड़ी में जानवरों की हड्डियां ले जा रहे थे कि गाँव रक्षकों ने उनकी गाड़ी को रोककर शदीद मारपीट की और हथियारों से उन्हें ज़ख्मी कर दिया। सदर मजलिस को जब इसकी इत्तला मिली तो इन्होंने रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग को रवाना किया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने अशरार के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि ज़ख्मी मुस्तफ़ा को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मजलिस ने पुलिस अहदेदारों से राब्ता करके मुतालबा किया कि शरअंगेज़ों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त दफ़ात आयद करते हुए उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए। आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसकी वजह से कई बेकसूर अफराद गौ रक्षकों के हाथों अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। महकमे बरक़ी की जानिब से हफ्ता 5 जुलाई को आसमानगढ़ के मुख्तलिफ इलाक़े जात में एमरजेंसी मीटिंग्स और दरख्तों की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ चंद घंटों के लिए बरक़ी सरबराही मजदूद रहेगी। इस काम की वजह से आसमानगढ़, लक्ष्मीगंज और गौतम नगर के इलाके मुतासिर होंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने अलावा बीबी दबीरपुरा पहुंचकर बीबी के अलम को ढट्टी चढ़ाई। उनके हमरा DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा, एडिशनल DCP DC ट्रैफिक साउथ जोन के अलावा ACPs मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि जुलूस के तमाम इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। आइंदा 3 दिनों के लिए ज़ायदा 3000 पुलिस अमले को मुतय्यन किया गया है और शहर के हालात पुरअमन हैं। उनका कहना था कि जुलूस को मुकर्ररा वक्त पर निकाला जाए। इन्होंने बताया कि ट्रैफिक एक बड़ा मसला है, जिसके लिए पुलिस ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जिन उमूर पर बात की गई थी इस पर अमल किया जा रहा है। अलावा अजी इन्होंने मुख्तलिफ जराइम के बारे में रोशनी डाली, जिस पर पुलिस ने बखूबी काबू पा लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ अत्तापुर के करीब एक नौजवान के साथ जुमा की सुबह ख़तरनाक वाक़या पेश आया। इसकी जेब में रखा मोबाइल अचानक फट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक पेशे से पेंटर श्रीनिवास नामी नौजवान बाइक पर सफ़र कर रहा था और उसकी पैंट की जेब में वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। अत्तापुर के करीब पहुंचते ही इसे महसूस हुआ कि फ़ोन गैर मामूली तौर पर गर्म हो रहा है। उसने फौरी बाइक रोक दी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता, फ़ोन अचानक उसकी जेब में ही ज़ोर से फट गया। फ़ोन फटते ही शोले निकले, ताहम श्रीनिवास ने फौरी होशियारी का मुजाहरा करते हुए मोबाइल को जेब से बाहर निकाल दिया। इस वाक़े में इसकी रान पर जलने के ज़ख़म आए। हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टर जगन मोहन रेड्डी के मुताबिक फ़ोन की गर्मी और धमाके की शिद्दत से रान की जिल्द बुरी तरह मुतासिर हुई है और ज़ख़म जिल्द की गहरी तह तक पहुँच गया है। अगर श्रीनिवास फौरी रद्द अमल ना देता तो नुकसान पट्ठों तक पहुँच सकता था। टैंकबंड से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को पुलिस की बरवक्त मदद ने बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक रामनगर के रहने वाली खातून जय श्रद्धा ने जुमा के दिन करीब 4 बजे हुसैन सागर झील में छलांग लगा दी।
इसे देखकर ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार त्रिभु ने मुकामी अफराद को मुतासरा खानदान को बचाने के लिए कहा, जिस पर मुकामी अफराद ने खातून को पानी से बाहर निकाल लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। BC तबके को इंसाफ मिलने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मोदी ने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया। BJP और RSS झूठ बोलते हैं। LB स्टेडियम के जलसे-आम से खरगे का खिताब। कांग्रेस हुकूमत आइंदा 10 साल तक इख्तिदार में रहेगी। हुकूमत की कारकर्दगी पर खुले मुबाहिस के लिए वजीर आला का चैलेंज। बीबी के अलम की सवारी के लिए कर्नाटक से हाथी का हुसूल। इतवार के दिन दोपहर अलम की बरामदगी, इंतजामात की तकमील। मोबाइल फोन जेब में फट पड़ा, नौजवान जख्मी, फोन गर्म होने से हादसा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।